بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو کے علم میں ہے کہ کل سے ٹی وی چینل پہ کچھ بات چیت چل رہی تھی ریگارڈنگ پرائم منسٹر صاحب کے نام کے لیے, کیئر ٹیکر کے لیے. تو فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ ہمارے سیکرٹری ہیں, انہوں نے واضح طور پہ اس پہ کلیئر کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی سے ابھی تک کوئی اس میں مشاورت نہیں ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک 3 رکنی کمیٹی ایک بنائی گئی ہے, اور جو بھی نام آئیں گے یا جو بھی ڈسکشن ہوں گے وہ اس 3 رکنی کمیٹی جو ہے پارٹی کی وہ اس مشاورت میں ہوگی شامل, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں اور سید نوید قمر صاحب ہیں. تو یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے یہ گورنمنٹ کے ممبر سے روابط میں ہے. تو جیسے ہی وہاں سے چیزیں فائنل ہوں گی تب ہوگی. جو کل سے ٹی وی پہ باتیں چل رہی تھی, اور میں دیکھ رہا ابھی بھی میرے سارے صحافی دوستوں نے, بھائیوں نے مجھ سے وہی سوال پوچھا, تو میں نے کہا وہ چیز میں آپ تمام دوستوں کے گوش گزار کر دوں. اس کے ساتھ جو کل قانون جر جبل پہ بات چیت ہوئی, اس پہ بھی گورنمنٹ آف سندھ کا کلیئر اسٹانس آ گیا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس کا چیف منسٹر صاحب نے نوٹس بھی لیا ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ ایسا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنے جائے گی جس سے جو آپ کی تاریخی کوئی چیز کی جو اہمیت ہے اس کو نقصان پہنچے اور ایک ہیریٹیج آپ کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. اور ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ملک میں نیچرل ریسورسز ہیں ان کی وہ یوٹیلائز کیا جائے, لیکن قانون جر جبل پہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے اس طرح کی کا کام نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ کل آپ کو یہ بھی علم ہے کہ نئی بسز جو ہیں وہ کراچی میں پہنچ چکی ہیں الحمدللہ, اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی ترجیح ہے کہ تمام ہمارے جو بھی پرائرٹیز ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ کو بھی زیادہ ہم آگے لے کر جائیں اور ٹرانسپورٹ محکمے میں مزید بہتری کے لیے مزید بسز لے کے آئیں, کیونکہ یہاں ریکوائرمنٹ بہت ہے. اور کووڈ کی وجہ سے جتنا بھی باہر آرڈرز وغیرہ پلیس کر رہے تھے, اب وہ پوری دنیا بھر میں فیکٹریز اور بھی آرڈرز جو ہیں وہ پلیس کیے ہیں. تو اسی میں کچھ بسز کل پہنچی ہیں, اور اگست کے مہینے میں کچھ بسز آ رہی ہیں, اور پھر سپٹمبر چھوڑ کے اکتوبر میں انشاءاللہ تعالی اور مزید بسز آئیں گی. تو اب یہ بسز اور ٹرانسپورٹ کا جو یہ آنے کا سلسلہ ہے وہ نان اسٹاپ جاری رہے گا. نان اسٹاپ انشاءاللہ تعالی اگلی گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی, اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ اب ٹرانسپورٹ کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا روڈ خالی نہ ہو جہاں پہ بس نہ گزرتی ہو. سندھ بھر کا ہر روڈ پہ پبلک ٹرانسپورٹ مہیا ہو تاکہ لوگ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں, لوگوں کو اضافی اخراجات نہ بھرنے پڑیں. اور کیونکہ ابھی کیئر ٹیکر کا پیریڈ آ رہا تھا, تو سندھ کیبنٹ نے جو سبسڈی ہے بسز کی مد میں جو ہم دے رہے ہیں ٹرانسپورٹ کی مد میں اپنے وینڈرز کو اور پبلک کو بیسیکلی وہ سبسڈی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے بس آپریٹرز نے کہا تھا کہ بسوں کے کرائے بڑھائے جائیں. تو ہم نے کہا کہ نہیں, کرایہ آپ وہی رکھیں 50 روپیز, اوپر کے پیسے سندھ گورنمنٹ دے گی. تو ہم نے 6 مہینے کے لیے جولائی سے لے کے دسمبر تک کے لیے وہ سبسڈی بھی اپروو کر دی ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو زیادہ جو ہے فائدہ مل سکے اور کم پیسوں میں لوگ اپنا سفر کر سکیں, کیونکہ مہنگائی کا بوجھ ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سمجھتی ہے کہ مہنگائی کا بوجھ کیا ہے. اور سب سے اہم بات جو کہ صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے جو بہت بڑی بات ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے گیم چینجر بات وہ ہے. محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاڑکانہ میں جب لوگوں کو مالکانہ حقوق دے رہے تھے ان زمین کے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیلاب جب آیا تھا تو لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے تھے, لاکھوں گھر جو ہے وہ بالکل صفائے ہستی سے مٹ گئے تھے. تو سندھ حکومت نے کہا کہ 21 لاکھ گھر ہم بنا کے دیں گے, جس میں کام چل رہا ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگوں کے گھر بننا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کو پیسے دیے جانے, لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں. لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ صرف گھروں تک بات یہ محدود نہیں ہوگی, کیونکہ یہ کوئی سرکاری زمینیں تھیں لوگوں کی. بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین کا ٹائٹل بھی ان لوگوں کو ملے,
اور ٹائٹل بھی خواتین کو ملے. تو یہ ایک ریولیوشن ہے. ابھی ہمارے سامنے تو گزر رہا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا, لیکن جب ریولیوشن لکھے جاتے ہیں, جب انقلابی کام لکھے جاتے ہیں, تو تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ انقلابی کام ہے کیا. انقلابی کام یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے جو جھوپڑے میں رہتا تھا, سیلاب میں اس کی جھوپڑی ختم ہو گئی, اب اس جھوپڑی والے کو آپ نے پکا مکان بھی بنا کے دینا ہے, اس جھوپڑی والے کو آپ نے اس زمین کا ٹائٹل بھی دینا ہے, اس جھوپڑی والے کو کی جو خواتین ہیں گھر کی, ان کو اتنا پاورفل کرنا ہے کہ ان خواتین کو وہ چھت مل سکے اور مالکانہ حقوق ان گھر کی خواتین کے نام پر ہوں. یہ ہے انقلابی کام, جس پہ اب یہ فیصلہ جو اس دن ہوا, پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس جلسے سے خطاب کیا, اس تقریب سے خطاب کیا, اور تقریب میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ اب ہم سندھ کے تمام اضلاع میں یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. سندھ کے ہر اضلاع میں لوگوں کو اب وہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور وہ یہ ضرور ہے کہ 2 ہفتے بچیں گے, 2 ہفتے میں ہم جتنے ڈسٹرکٹس کور کر سکے ہم وہ ڈسٹرکٹس کور کریں گے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی آئے گی تو سیلاب تو پورے پاکستان میں آیا تھا, سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا, سیلاب بلوچستان میں بہت برا آیا تھا, سیلاب پنجاب میں بھی آیا تھا, لیکن یہ کام جو ہے گھر بنانے کا, ڈیولپمنٹ کا, مالکانہ حقوق کا صرف سندھ میں ہو رہا ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی اور انشاءاللہ تعالی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو یہ پروگرام خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہوگا, یہ پروگرام بلوچستان میں بھی شروع ہوگا, یہ پروگرام پنجاب میں بھی شروع ہوگا, تاکہ وہاں کے وہ لوگ جو آج دن تک جن کی تیسری جنریشن اس وقت اس ملک میں رہ رہی ہے اور ان کا اپنا گھر نہیں ہے, ان کے لیے اپنی چھت نہیں ہے, ان کا اپنا مکان نہیں ہے, ان لوگوں کو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں, ان لوگوں کو آپ ٹائٹلز دے رہے ہیں, گھروں کے ملکیت دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی اور کے آپ کو گھر بھی بنا لیا اور آپ ہیں بھی کسی اور کی زمین پہ بیٹھے ہوئے, نہیں, ان کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا انقلابی کام ہے جس کا دعویٰ ماضی میں کچھ اور لوگ کرتے تھے, لیکن ہمیشہ پائے تکمیل تک پاکستان پیپلز پارٹی نے پہنچایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کا ہمیشہ ایک ہی نعرہ رہا تھا, روٹی, کپڑا اور مکان. روزگار بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, ہمیشہ روزگار کے مواقع پاکستان پیپلز پارٹی نے فراہم کیا, اور اب اور ہمیشہ پہلے بھی کرتے رہے. مکانوں کی اسکیم یہ نہیں کہ آج کوئی شروع ہو رہی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہمارے بہت بیشتر ہماری اسکیمز جو ہیں وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ, اسمال ہاؤسنگ اور یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. تو اب مکان بنانے کی جو مکان کا وعدہ ہے اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت پورا کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگلی اس الیکشن کے بعد پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ وعدہ کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ ان کو یہ مالکانہ حقوق دیے جائیں گے. یہ ہے اس وقت ملک کے عوام کی ضرورت. جب آپ کے پاس مہنگائی کا پریشر ہے, جب آپ کے پاس انفلیشن ہے, اور انفلیشن پوری دنیا میں ہے لیکن آپ کے پاس اس کے امپیکٹ زیادہ آ رہے ہیں, تو آپ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. ریلیف اسی طرح دے سکتے ہیں آپ. ریلیف کی سب سے بڑی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو 3-3 لاکھ روپے ان کو کیش ان ہینڈ دے رہے ہیں کہ جی آئیں اپنا گھر خود بنائیں, اپنے ہاتھ سے بنائیں, اپنے پیسوں سے بنائیں. اور آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ خود بھی اس گھر بنانے کے عمل میں مردوں کے ساتھ وہ خود بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, اور ان کی آپ نے دعائیں سنی ہوں گی, ان کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی جو مختلف میڈیا میں چل رہی تھی کہ پیپل آر اپریشیٹنگ دس, لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے کہتے ہیں سبز انقلاب, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے بنیادی مسائل کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے, سب سے بڑی مشکلات ہے, وہ جو ٹی وی اور اخباروں میں نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج ہے, وہ ہے پاپولیشن کا چیلنج. آبادی کی تعداد جس طرح بڑھ رہی ہے, انفارچونیٹلی اس کی روک تھام کے لیے, اس پاپولیشن کی اس میسو مشروم گروتھ کے لیے کام نہیں ہوا. تو ایسے موقع پہ ہمیں وہ پالیسیز بھی بنانی ہے کہ ہم آبادی کے تناسب کو اگر نہ روک سکے تو چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر چلی جائیں گی, کیونکہ ریسورسز آپ کے پاس وہی ہیں, آپ کے پاس ایکسٹرا ریسورسز نہیں آ رہے, اور پاپولیشن کی آپ کی بڑھ رہی ہیں. تو آپ نے کچھ بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے, اور وہ فیصلے حکومتیں سنجیدگی سے بیٹھ کر کریں گی. تو وہی ہمارا مدعا ہے, وہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ حکومت ہے, وہ پارٹی ہے جو سنجیدگی سے ہر چیز کو دیکھ بھی رہی ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل بھی کر رہی ہے. اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں, آپ نے ماضی میں بھی ذوالفقار آباد کا منصوبہ پلان کیا, عمل نہیں ہوا. اب یہ کاروجر والا جو فیصلہ ہے, پہاڑی کو بیچنا, 5000 ایکڑ کوئی معمولی زمین نہیں ہے,
ना उसका जो है वो कोई माहौलियाती सर्वे करवाया गया, ना ही जो है उसकी जो तारीखी एक अहमियत है उसको ध्यान में रखा गया। तो ये टेंडर किसने दिया, कैसे दिया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बताएं, क्योंकि देखिए पूरा जी, सिंध इंतजार में है। अच्छा मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट में हर महकमा अपना काम खुद करता है। मैं अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अपने काफ़ी काम मैं खुद करता हूं, इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट अपना काम खुद करता है। इसी तरीके से माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट की में भी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने उन्होंने काम किए, उन्होंने ना ही उनकी कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखा जो कि उनको करना चाहिए था। इसी वजह से वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया है और मिनिस्टर साहब पर्सनली उन्होंने भी इस चीज़ को अपने सेक्रेटरीज को सबको कहा है कि जी बगैर आपके मशावरत के काम आपने नहीं करना चाहिए था, और गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उस टेंडर को कैंसिल किया जाए। तो कोई भी ऐसा फैसला जो कि अवाम की उमंगों के खिलाफ हो या जिससे अवाम मुतासर हो, वो पीपल्स पार्टी नहीं करती। आपको पता है कि अरबों रुपए के स्मॉल डैम्स नंगर पाकर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए, इससे पहले नहीं बने, इससे पहले नहीं बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए के स्मॉल डैम्स बनाए। उसी पहाड़ से जो पानी गिरता है वो पानी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। नंगर पाकर के वो लोग जो भूख और इफलास में कहत में हमेशा अपना टाइम गुजारते थे, अब उन स्मॉल डैम्स के जरिए वो अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। वहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कल्टीवेशन होती है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। साहब ये बताएं, पहले तो मेरे सवाल को आपने तामुल से सुनना है, जल्दी नहीं करना। आज जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मुल्क का नया वजीर आजम नवाज शरीफ को आपने वोट दिए थे, वो कह रहा है कि मुल्क का नया वजीर आजम शहबाज शरीफ। दोम जिस PDM के साथ आप इत्तेहाद में, उसका सरबराह फजल रहमान सिंध में खुसूसन लाड़काना में वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो को शिकस्त देने के लिए लाड़काना इत्तेहाद को सरगर्म करने और GDA के पास इत्तेहाद के लिए गए। नंबर 3, इसी वजीर आजम ने यह कहा है कि जो साकिब निसार है वही असल में 4.5 साला साजिश का सरगना है। क्या कहेंगे आप? बस 3 सवाल, बस इतने तो बाकी को भेज दे घर, बाकी को घर भेज दे। हाँ अच्छा, मैं सारे सवाल लेके आखिर में बोल दूं नो कमेंट। अच्छा बात सुने, अच्छा मैं पहला सवाल क्या था आपका? पहला ये सवाल है कि मौजूदा वजीर आजम जिसको आपने वोट दिए, अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि नवाज शरीफ अच्छा जी मैं देखूं, हर पार्टी का अपना कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म कैंडिडेट हैं, नून लीग के अपने कायद होंगे। हर एक ने अपनी अपनी रखनी है, उसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है और उसमें कोई रिएक्शन देने की जरूरत भी नहीं है। हर पार्टी की ये ख्वाहिश होगी, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं, तो इसमें कोई बुरे मानने की बात। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब की बात की। मौलाना फजल रहमान साहब की एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी है, वो उस पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी है जहां भी किसी से मिले ना मिले, और उसमें किसी को हम समेत एतराज़ करने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए कोई भी हमें जो इसमें एहतजाज या इसमें कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक GDA की आपने बात की, GDA एक पॉलिटिकल पार्टी है और GDA जरूर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी। तो पीपल्स पार्टी, मैं आपको हर बार वो कहता हुआ हूँ, दोबारा कहूँ, पीपल्स पार्टी मैसेज दे रही है यूनिटी का। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को चाहती है कि सब यूनाइटेड हों और सब यूनिटी के साथ इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपना काम करें, अपना किरदार अदा करें। तो अगर पीर साहब पगारा या GDA के दोस्त कोई बैठक कर रहे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है सब लोग, हम उनका भी एहतराम करते हैं और डेफिनेटली वो अगर अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो सबको पूरा इख्तियार है। GDA की अगर मीटिंग अभी दोबारा वो एक्टिव हो रहे हैं तो होने दें। मुझे जहां तक पता है कि GDA के 80% लोग जो हैं वो आज भी पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, दोबारा बताइएगा। और उसमें जो भी लोग हैं वो राब्ता कर रहे हैं पीपल्स पार्टी। तो डेफिनेटली हर कोई अपना पॉलिटिकल डिसीजन खुद करता है, तो फिर भी अगर बहुत एहतराम है सबके लिए। और अब हमें वो नेगेटिव सियासत छोड़ देनी चाहिए कि अगर कोई मेरे लिए बयान दे तो मैं 2 और सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप की पॉलिसी है यूनिटी की, उसको हम बरकरार रखेंगे। किसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए कोई बात कर ले, कोई गवर्नमेंट के लिए बात कर ले, ठीक है,
अभी उनका काम ही इल्ज़ाम लगाना है ना, क्योंकि जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उनको इल्ज़ाम लगाने दें। बाकी पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कि हम सबको साथ लेकर चलें। एक बार कोई और पूछ लेगा, एक बार पहले देखिए जी, सर इसमें ये भी ऐड कर लें, अगर निगरान वज़ीर सदरुद्दीन शाह को बनाया जाए तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा? यार आप तो अगर और मगर बहुत करते हैं यार, कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया। भाई बात सुने, दुबई में जा दो। अच्छा मैं आपको बात बता दूं, वज़ीर आला कौन होगा ये तो बता दे। मजीद अब्बासी। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि हकीकत ये है कि फैसले जो भी होंगे बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, और कोशिश ऐसे की जाएंगे कि नॉन कंट्रोवर्शियल लोग जो हैं वही आगे आएँ, ताकि इंतखाबात पे कोई सवाल या निशान ना हो और इंतखाबात साफ और शफाफ हो सकें। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है, पीपल्स पार्टी की डिमांड सिर्फ एक ही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात। पीपल्स पार्टी कोई चीज़ नहीं करी। जहाँ अपोजिशन लीडर की बात की, अपोजिशन लीडर साहब इस वक्त जो है अंडरग्राउंड है कहीं। मेरी उनसे गुजारिश होगी और गारंटी भी, मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी ये बात की थी कि आएँ, अपना रोल प्ले करें, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, ना असेंबली में कहा जाएगा ना असेंबली के बाहर कुछ कहा जाएगा। आप बड़ा मेहरबानी आएँ, ये एक आपकी आईनी जिम्मेदारी उसको पूरा करें। बाकी छुप के कहीं से गायब होके सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कराने से जो है वो मसाइल का हल नहीं है। अच्छा ये बता दें शकील साहब, क्या सिंध यतीम खाना है? कहीं पर लोगों को लीज पर जमीनें दी जा रही है, कहीं पर खुदा के नाम पर जमीनें दी जा रही है, कहीं पर पता चल रहा है कि लाखों एकड़ जमीनें जो है ना वो कुछ काश्तकार के लिए अरबों को दी जा रही है। ये मतलब क्या हो रहा है? क्या सिंध हुकूमत को पता नहीं है क्या करने वो जा रही है कि लीज पर ऐसी जमीनें दी जा रही है? कीतर भी तो आपका एक मतलब हेरिटेज है ना, वहाँ पर भी तो आयात है, जंगली आयात है, पहाड़ी इलाका है। कीतर भी की जमीनें जो है ना वो मलिक रियाज साहब वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इस हवाले से भी आपका क्या है गोरख तक इस हवाले से? अच्छा भाई, आपका सवाल जो है ना उसमें मफरूज़ ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं। सरकारी वो ज़मीन जो किसी के इस्तेमाल में नहीं है, अगर वो कोई भी इदारा इस्तेमाल लेता है किसी भी काम के लिए, कोई काश्तकारी के लिए या कोई किसी स्कीम के लिए, तो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं। गवर्नमेंट की वो लीज अमाउंट गवर्नमेंट चार्ज करती है। गवर्नमेंट का बिजनेस इस तरह चलता है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो लॉ से हटकर, कानून से हटकर किया जाए। कानून में हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक रोल डिफाइन किया हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अपना रोल है, एलयू डिपार्टमेंट का अपना रोल है, हर डिपार्टमेंट का अपना रोल है। तो वो जो भी करते हैं उन सारी चीज़ों को देखकर फिर करते हैं। शकील साहब, मुल्क के अंदर कौमी सलामती के हवाले से बहुत सारे केसेस पेंडिंग में हैं और कौन से केसेस? मुल्क की सलामती के हवाले से रफाई के और हमलों के 9 मई के केसेस हो गया। और प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है 8 अगस्त तक। तो क्या निगरान हुकूमत उन केसेस को इस तरह कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं पाएगी? देखिए जी, निगरान हुकूमतों ने नहीं करना, असल में प्रोसिक्यूशन ने परसू करना होता है। प्रोसिक्यूशन जब किसी पे मुकदमा दर्ज किया गया है, चाहे वो 9 मई का हो या और अहम मुकदमा, वो मुख्तलिफ महकमे जिन्होंने किया है, तो महकमों में प्रोसिक्यूटर भी मौजूद है, उनका अमला भी मौजूद होता है। ये नहीं है कि निगरान हुकूमत अगर चली गई तो वो महकमा खत्म हो जाता है, मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट चली गई अभी जो है, तो डिपार्टमेंट सारे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फंक्शंस जारी रहते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। काजी साहब, ग्रीन रेवोल्यूशन जो सर्द इंकलाब का नारा है कि वो सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद है, आर्मी चीफ भी वहाँ जा रहे हैं पीएम के साथ, तो सिंध में क्या सर्द इंकलाब के लिए कोई काम नहीं करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे पाकिस्तान में आएगा और अच्छी कोशिशें अगर जहाँ पे भी की जाएंगी तो वो उनके अगराज मकासद को देखकर डेफिनेटली गवर्नमेंट अपना फैसला भी करेंगी। और इस वक्त आपके मुल्क को जो है ना वो इकॉनमी के हिसाब से बड़े फैसले करने का है कि आपके बड़े अहम फैसले क्या आप करें जिससे आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सके। चाहे आपको उसमें काश्तकारी को बढ़ा रहे हैं, आप बाकी सेक्टर्स को, अपने जो कुदरती जो आपकी मादनियात हैं उनमें कोई फैसले आपने करने हैं, और जो भी फैसले करने हैं, मैं समझता हूँ कि मैं जैसे काजी साहब एक बात मैंने कही, और ये बात मैंने खाली ऐसे मुहावरतन नहीं कही है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू आपका वो पॉपुलेशन का है और बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हो रही है। इट इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न। ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत फिक्र की बात है ये। और उसको रोकने के लिए अब
एक तो एक रोकने के उसको कम करने के लिए क्या आप अपने इकदाम आते हैं, दूसरे अपने आप को रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि काफ़ी सेक्टर्स को आप छोड़ चुके हैं काफ़ी अर्से से, उसको छोड़ते ही रहें। आपको अब हर सेक्टर में प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ेगा ताकि आप इस मुल्क के लोगों को रोजगार भी देना है। ये नहीं कि लोग पैदा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं और जो उनके लिए पानी तो आपको उतना ही है जितना आपको मिल रहा है, एग्रीकल्चर तो आप उतनी उगा रहे हैं जितनी आप उगा सकते हो, वो पानी के हिसाब से सारी चीज़ें करते हो। तो आप आखिर आपने अपने लिए वेज ढूंढने होंगे हुकूमत ने। जब तक आप वो वेज नहीं ढूंढते तब तक जो है वो चीज़ नहीं होगी। इनके बाद आपका सातवीं कौमी मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है। कल चीफ सेंसस कमिश्नर ने ये बताया कि आइंदा 2 रोज में नंबर हुकूमत को पेश कर दिए जाएंगे। हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि जो अब तक की मरदमशुमारी हुई उस पर कोई एतमाद नहीं लिया गया और नई हल्काबंदियों का मामला दरपेश? देखिए जी, जो भी नंबर आएंगे वो देखकर ही सिंध हुकूमत फैसला करेगी कि मरदमशुमारी में क्या क्या हुआ है। क्यों हमारा खदशात ही ये था कि हमसे शेयर नहीं किए जा रहे थे डेटाज, जो हमने एहतजाज भी किया जिसको हमने हाईलाइट भी किया, तो उसको हम देखे जाएंगे। ये बताइएगा कि आज इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है पानी की बोतल से, हाँ क्या सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए उसकी? पानी की बोतल से कातलाना हमला हुआ है। देखिए, इमरान खान झूठा शख्स है, उस झूठे शख्स की बात पे आप भी ध्यान ना दें, हम भी नहीं देते। सर मेरे को बनते हैं असेंबली के अंदर, मुझे बरामद नहीं होता। जिला जनूबी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर्स मुसलसल अंडर एज बच्चों को भर्ती कर रहे हैं 15,000 रुपये। ये मिनिमम वेज के क़वानीन की खिलाफ वर्जी जो कि इसी असेंबली से पास हुए, अंडर एज को एम्प्लॉयमेंट पर रखना भी चाइल्ड लेबर में आता है, उसके खिलाफ भी क़वानीन मौजूद है। क्या कहेंगे? इम्तियाज शाह साहब से बात, उन्होंने कहा हम कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दे रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 5 साल से देखिए, आपने जो मैंने पहले बात की उसका मुझे जवाब आपने दे भी दिया। पहली बात कि गैर कानूनी काम कोई गवर्नमेंट या कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई अंडर एज बच्चों को भर्ती कर रहा है तो भी वो लॉ को वायलेट कर रहा है, और जो मिनिमम वेजेस 32,500 से कम किसी को सैलरी मिल रही है तो वो भी कानून की वायलेशन हो रही है। लेकिन जो आपने बात की वो मेरी बात वही थी, जो 15 साल के बच्चे आप बोल रहे हैं कि जिनको ये सॉलिड वेस्ट वाले यूज़ कर रहे हैं, ये बच्चे ये क्यों ये काम कर रहे हैं, ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों यहाँ आ रहे हैं और ये काम क्यों कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और वो क्वेश्चन मार्क वही है, मैं कह रहा हूँ कि हमें अब अपनी उन सारी चीज़ों को फिक्स करना होगा। ये लोग मतलब छोड़ देते हैं बच्चों को इस तरह ना, मतलब कि आपने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये कल को अल्लाह ना करे जो अगर हमने इस पॉपुलेशन वाले मैटर को सही तरह रिजॉल्व नहीं किया तो लोग 2-2 हज़ार रुपये में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो आपका असर हो जाएगा। उसको गवर्नमेंट और पब्लिक, ये वो मैटर है जिसको गवर्नमेंट और पब्लिक ने मिलकर हल करना है। अब आपके जितने मैटर्स हैं वो गवर्नमेंट और पब्लिक ने मिलकर उन चीज़ों को एड्रेस करना है। अकेले अगर हम गवर्नमेंट पे छोड़ दें कि यार बस गवर्नमेंट ने बस सब कुछ करना है, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। और पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कहे कि जी सारी चीज़ें मैं बगैर आवाम की मदद से हल कर सकूं। आवाम को भी हुकूमत के साथ यूँ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। शहर में हम लोगों की सूरत हाल है वो इंतहाई खराब हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ न्यू टीवी के रिपोर्टर सरफराज साइमानी को शहर फैसल से लूट लिया, डकैत सरेआम घूम रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, तो उसकी हुकूमत आप भी कल सर मेरा सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के सरबराह हैं, जो लैपटॉप दे रहे हैं वो सिर्फ हाँ सुना हूँ पंजाब के लोगों ने। सर सिंध में भी नौजवान है, क्या इनको लैपटॉप देने का नहीं है? दूसरे जो आप सर्विस शुरू किए पूरे कराची में, सिंध में, और हर तरीके से सर शादी वालों के लिए कोई फिक्स करेंगे, कोई अपना कोई बस सर्विस कोई शुरू कराएंगे जो शादियाँ कर सके लोग अपनी। अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई। पहले आपका जो था क्राइम के लिए, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कल परसों भी मीटिंग की है और बड़ी कामयाब मीटिंगें हो रही हैं, और वो कह रहे हैं पुलिस को उन्होंने सख्त हिदायत की हुई है कि जो भी स्ट्रीट क्राइम के इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। जहाँ आपकी बात है लैपटॉप की, ठीक है, जहाँ उनकी वो मर्जी है प्राइम मिनिस्टर साहब की उस सूबे में वो लैपटॉप दे, उनकी अपनी मर्जी है, उसमें मैं जो है उनको नहीं कहता। हम अपने लोगों को उससे बेहतर काम जो है वो करके दे रहे हैं। साहब ये बताइएगा कि जो कारूंजर वाला इशू था ये हमेशा के लिए दफन हो गया, या ये एक दिन के बाद 2 दिन छोड़ के दोबारा ऐसा इश्तिहार है? एक तो ये, दूसरा ये है कि अपर सिंध में जो क्राइम की सिचुएशन है उस पर नाकामी के बाद अब ये एसएफटी के तबादले का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए जी, आप ये देखें कि आईजी साहब और होम डिपार्टमेंट इतना विजिलेंट है कि जब देख रहा है कि अगर कहीं पे कोई किसी के काबू में नहीं आ रही तो फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहा है, किसी के हवाले नहीं किया हुआ
तो डेफिनेटली कोई पुलिस की कोशिश ये है कि जो भी इस वक्त वहाँ पे डेकॉइट्स का जो इशू है उसको उसी तरीके से देखे। आप ये भी देखें कि डेकॉइट्स के पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके पास जदीद हथियार है जो पुलिस के पास नहीं है। इसीलिए पुलिस ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कहा था कि हमें भी उस तरह के जदीद हथियार जो हैं जो कि नॉर्मल पुलिस के पास नहीं होते उनको दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए कि पुलिस उन दहशतगर्दों से और या उन डाकुओं से उस लेवल पे लड़ाई कर सके। कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जीतते हैं वो बारिशों के बाद डूबी हुई है, तो कितनी दफ़ा आप लोगों को इलेक्ट होना पड़ेगा? 15 साल से आप लोगों की गवर्नमेंट है और हर बार आप लोगों के इलाके डूब जाते हैं, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं? सर इसी से जुड़ा हुआ भाई कौन सी डूब हुई है? आपकी 63 उसमें 63 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उसमें पानी था, लेकिन वहाँ पे पानी को निकाल दिया गया है। और हर बार की तरह हमारी इंतज़ामिया, हमारे सियासी लोग वो ऑन ग्राउंड होते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेरा नुमाइंदा वहाँ मौजूद था और उसने वहाँ खड़े होकर सारे पंपिंग स्टेशंस पे पानी को ड्रेन करवाया है और रात तक लेट आवर्स तक वो वहाँ मौजूद था। ऐसे ये बताया कि निगरान हुकूमत के हवाले से बिलावल भुट्टो और आसिफ अंसारी मुल्क में है या दुबई में? नंबर एक बात इनकी असली जगह लोकेशन क्या है। दूसरा ये कि हम देखते हैं कि सीएम साहब आप और अराकीन असेंबली वजीर खड़े होकर इरफान समूह की तारीफ कर रहे होते हैं कि अच्छा अफसर लगाया, फिर हम देखते हैं कि उसको एकदम हटा भी देते हैं। अच्छा अफसर भी ये हटा भी देते हैं, क्या? देखिए जी, इरफान समूह बजात खुद एक अच्छा ऑफिसर मशहूर है, सखर में भी उसने बड़े रिजल्ट्स दिए थे। अब कुछ एरिया, अगर किसी एरिया में पुलिस ने महसूस किया है कि उससे बेहतर शख्स भी मौजूद है तो उन्होंने उसको चूज़ किया है। बाकी निगरान हुकूमत जो है उसका प्रोसेस, मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कमेटी नॉमिनेट की है, वो कमेटी जो है 3 रुकनी वही जहाँ पे भी हो सब खैरियत है। थैंक यू। अल्लाह।